Here, I would like to present a case of sarcoidosis-induced uveitis. A 27-year female patient who is housewife, resident of Madhya Pradesh, case of bilateral diminution of vision. History of present illness of the patient. The patient was apparently normal before 5 years, came to National Institute of Ayurveda Shalakitandra OPD due to gradual diminution of distant and near vision in bilateral eyes since 2 years, which was gradual, painless and persistent in nature. The patient was suffering with multiple joint pain since 5 years along with reduced appetite and sleep before 2 years. She is using spectacles since 2 years more. History of past illness of the patient. The patient is known case of sarcoidosis induced uveitis since 5 years and was under steroidal and immunosuppressive medicines like ASR, Predford and injection like adalimumab. The patient was trying to withdraw these medicines and got aggravated earlier mentioned symptoms. Ophthalmologist diagnosed this case with cataract due to uveitis in bilateral eyes and suggested cataract surgery. The patient underwent intraocular lens placement in left eye before 2 years and in right eye before 1 year. After that, the patient did not get significant vision improvement. So, they approached in Shalakitandra OPD in National Institute of Ayurveda Hospital. The patient advised various Ayurveda therapies under Professor Shamsa Fayaz ma'am like Snehapana, Virejana, Vidalaga, Parishega, Nasya, Tarpana, Pudapaga, Chakshushavasti, along with internal medicines for 40 days. Vision of the patient got improved after treatment. After Pudapaga procedure, the patient got subjective improvement of symptoms related to vision and the patient did not show withdrawal symptoms of steroid therapy since she got admitted. And the patient is continuing the internal medicines. The patient is very glad that she could regain her quality of life. Next, we will hear from the patient herself. और उसके कारण अकड़ भी जाते थे मैम, तो बहुत सी टाइम तो मेरे पैर वगैरह भी खराब हो गए थे। तो डॉक्टर्स ने मुझे ये बोला था कि आपके घुटनों में इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो फिर वो नहीं लगवाए थे मैम। उन्होंने फिर क्या डायग्नोस किया था? कुछ नहीं, उस टाइम पेन किलर्स की इंजेक्शन लगवा के मैं डिस्चार्ज ले चुकी थी और फिर आइस में मेरे को वैसे ब्लर दिखना और ऐसे सूजन वगैरह आ जाती थी, तो उसके कारण बहुत सारी मेडिसिन वगैरह भी चलती थी। So this patient is diagnosed with uveitis due to sarcoidosis induced uveitis, and she was taking steroids for 5 years. So after coming to this institution, we started the Ayurvedic treatment with Snehapan and other medicines. So we stopped the steroids. So long-term steroids complications were there, but when she came here, there were no withdrawal symptoms. So आपको पहले आपने कितनी बार 5 साल से लगातार आप स्टेरॉइड ले रहे थे, तो आपने कितनी बार स्टॉप किया स्टेरॉइड को? मैंने 8 से 10 बार स्टॉप किया, जिस बीच में मेरा विजन पूरा स्टॉप हो गया। मतलब विजन ब्लर हो गया? हाँ। कितने दिन में स्टेरॉइड स्टॉप करने के कितने दिन में ब्लर हो गया? 4 दिन से ब्लर हल्का हल्का स्टार्ट हो जाता था, 8 डेज तक पूरा लॉस हो जाता था। और जॉइंट पेन में? जॉइंट पेन तो वो भी मैम स्टार्ट हो जाते थे मेरे, 2-3 दिन से स्टार्ट। स्वेलिंग भी आती थी? स्वेलिंग भी आती थी पूरे पैर। और दूसरे कुछ सिम्टम्स थे? मेरा फेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था, सूज जाता था, पूरे फेस पे सूजन रहती थी, हाथ पैरों में सब में सूजन रहती थी, पेट वेट भी मेरा बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता था, मतलब पूरी बॉडी मेरी एकदम सूजन हो जाती थी। यस। तो आपको फिर से स्टेरॉइड लेना पड़ता था? हाँ, फिर से स्टेरॉइड्स। और कितने दिन के बाद ये इफेक्ट, मतलब ये सिम्टम्स कम हो जाते थे? 10 दिन के बाद मैम मेरे ये सिम्टम्स कम होना स्टार्ट होते थे। फिर भी लेकिन रहता ही था कि कुछ ना कुछ होता था, फिर भी स्टेरॉइड्स लेती थी मैम। यहाँ आने के बाद हमने स्टेरॉइड बंद किया, तो उसके बाद आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम हुआ? नहीं मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट्स है, मेरे जॉइंट्स वगैरह में पेन भी नहीं है। आइस में मैंने देखा, जब मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ बंद की थी, जिस टाइम मेरा जो विजन था वो स्टेबल हो गया था। अभी तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से मुझे अभी थोड़ा सा रिलीफ भी है मैम और अच्छा इम्प्रूवमेंट्स है। इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, थैंक यू सो मच। ठीक है। मेरी लाइफ में आपने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, मैं आपके लिए हमेशा क्या क्या चेंजेस बताइए?
मैम मैं बहुत सारा जॉइंट्स पेन होता था, पूरा आइस मेरा लेफ्ट वाली तो पूरी ब्लर है, राइट वाली में भी विजन ऑलमोस्ट चला गया था, थोड़ा ही बहुत था, लेकिन अभी राइट वाली में थोड़ा सा इम्प्रूव है, लेफ्ट वाली इम्प्रूवमेंट्स में चल रही है। तो अभी और मेरा पूरा बॉडी ऐसा बहुत ज्यादा फूली थी मैम, मेरे हस्बैंड की तरह थोड़ी हो गई थी। अभी मेरा बॉडी वेट कितना है? पहले कितना था वेट? अभी पहले कितना है? मेरा 75 था मैम, अभी मैंने कल ही वेट किया था तो मेरा 67 था। अच्छा। हाँ। तो इसमें इस ट्रीटमेंट से आपको और क्या फायदा हुआ है ओवरऑल हेल्थ के ऊपर? अभी तो मैम मेरे को पूरा नींद वगैरह नहीं आ रही है, जैसे पूरा दिन ऐसा लगता था जैसे मैं नशा करके सो रही हूँ, तो नॉर्मल मेरा हो गया दिन भर। नींद अच्छी आती है? हाँ। जॉइंट पेन है? जॉइंट्स पेन वगैरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, जैसे हल्का फुल्का हो जाता है तो मैं वो ऑयल लगा लेती हूँ महानारायण, तो बहुत रिलीफ मिलता है मुझे उससे, फिर नहीं होता है। हाँ, तो ये मुझे रिलीफ है मैम। भूख लगती है अभी? हाँ, भूख अच्छी लगती है। पहले नहीं लगती थी? नहीं, वैसे तो इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन खाना वाना अच्छा था। और दूसरा मतलब और दूसरा क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? विजन में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और पहले से अभी को? हाँ, विजन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है मैम, मेरा बॉडी पूरी बहुत एकदम सही हो गई है, मतलब हर चीज हो रही थी बॉडी। और ये स्टेरॉइड बंद करने के बाद कुछ ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। आज कितने दिन हुआ स्टेरॉइड बंद करके? आज हो गया मैम 2 महीने, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो बट अभी तक कुछ ऐसा नहीं। तो इस ट्रीटमेंट से आपको क्या मतलब बेस्ट क्या पार्ट अच्छा लग रहा है? इस ट्रीटमेंट से मेरे को बेस्ट पार्ट ये लग रहा है कि मैम मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई है। उसका कितना खर्चा आता था दवाइयों का? मैम मेरा डॉक्टर की फीस 2000 रुपए थी, 20,000 का मेरा इंजेक्शन था, 10,000 की मेरी दवाइयाँ थी मंथली? हाँ, और जो मेरे टेस्ट वगैरह थे वो अलग थे, वो टेस्ट कितने भी हो जाए 10,000 15,000, मतलब टोटल बोले 40,000 मंथली मेरा खर्चा होता ही था। शायद मैं फर्स्ट डे भी आई थी तो मैंने आपको यही बताया था मैम, मेरा इतनी सारी चीजें होती, बट यहाँ पे अभी मेरे को ऐसा उस टाइम पे इतने खर्चा करके भी आपके क्या सिम्टम्स थे? मतलब उस टाइम पे आप ले रहे ब्लरी थे दिखता था मैम, ब्लरी मेरे को, फिर मैंने ऑपरेट भी करवा ली कि कैटरेक्ट चलो, का- हाँ, कैटरेक्ट कैटरेक्ट ऑपरेट जल्दी आ कराया। गया। हाँ। कैटरेक्ट कराया कि अब शायद फाइनली रीजन आ जाएगा, क्योंकि ऑपरेट कराने से कुछ अच्छा हो जाएगा, बट उसके बाद भी नहीं हुआ मैम। कैटरेक्ट ऑपरेट कराने के बाद अब तो मेरी लेफ्ट आइज का पूरा विजन चला गया, बस 10-1 दिन कुछ अच्छा रहा था, उसके बाद नहीं रहा, फिर पूरा लॉस हो गया विजन मेरा वापस से। अब उनको जैसे डॉक्टर्स को कुछ भी बोलती थी ना मैं, तो वो लोग मुझे सिर्फ स्टेरॉइड्स ही सजेस्ट करते थे, कभी 70 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम ऐसे, और वो बहुत ज्यादा हाई डोज हो जाता था। 70 मिलीग्राम मतलब खाना मतलब बहुत ज्यादा हो जाता था। अच्छा। हाँ, तो वो डेली का मैं लेती थी, और उसके साथ मेरी मैम 10 मेडिसिन और चलती थी स्टेरॉइड्स के साथ ही, मतलब सुबह खाली पेट से स्टार्ट होता था, रात के खाने तक तो कुछ ना कुछ चलता रहता था। अच्छा। अब यहाँ आने के बाद कितना खर्चा हुआ? 2 मंथ्स में आपका कितना खर्चा हुआ लगभग? 10,000 के समथिंग हुआ होगा मैम। सब मेडिसिन? हाँ, बाहर की मेडिसिन वगैरह सब मिला। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को, अगर इस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिला है? हाँ मैम, मैं तो फाइनली यही मैसेज देना चाहूँगी कि सब लोग आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लें, क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट मैम, आपने मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, शायद जो दुनिया के कोई डॉक्टर नहीं कर पाए थे आपने कर दिया। आप मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आए हो, भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और बहुत अच्छी चीजें आपके लिए हो, और आयुर्वेद बहुत अच्छा है मैम, नहीं, यहाँ का हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर, हाँ ट्रीटमेंट, हाँ, मेरे को कभी, हाँ मैम, मेरे को 1.5 महीने हो गए, डॉक्टर्स वगैरह सबका नेचर्स वगैरह बहुत अच्छा है, मुझे लगा नहीं कि मैं अपना घर छोड़ के आके यहाँ पे, जैसे वहाँ हॉस्पिटल में 2 दिन भी रहो तो बहुत फ्रस्ट्रेशन वगैरह हो जाता था, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगा नहीं, मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, मुझे 1.5 महीने हो गए और मैं अच्छे से रही भी हूँ, और अभी भी फाइनली मुझे अच्छा ही लग रहा है। इसके बीच ऐसा ग्रॉस